خان صاحب سے ملی، ہماری تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ خان صاحب جو ہیں وہ ہائی اسپرٹس میں ہیں، حوصلہ ان کا بلند ہے اور پوری استقامت کے ساتھ تمام صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، انہوں نے عدالتی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں، جو پیش رفت ہیں، اس پہ تھوڑی سی انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ پیش رفت تیز نہیں ہے اور تاریخیں بڑی لمبی لمبی مل رہی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جو ہے پارٹی کے امور پہ اور پنجاب میں اور بلوچستان سندھ میں کنونشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ پشتونوں نے جس انداز میں ڈٹ کے کھڑا ہو کے خان کی جو پیغام ہے اس پہ لبیک کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پورے پاکستان کو ایک مثبت پیغام گیا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے اور ووٹ کی جو عزت ہے اس کو اس سے قبولیت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد 8 فروری تک جاری رکھنی چاہیے۔ جب 8 فروری آئے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جوش و خروش سے نہ کہ صرف اپنے ووٹ کو سیکیور کریں، کیونکہ خان صاحب اس پہ زور دے رہے تھے کہ صرف عددی برتری یا عوام کا جو جمگٹا ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صحیح اقدار کو ملے۔ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان تک آپ کے ووٹ کی صحیح رسائی جو ہے وہ اس پورے کاز یا مشن کا مقصد ہے۔ انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے عنقریب 1.5 ہفتے کے اندر اپنے کنونشن کا آغاز کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اصل جو جنگ ہے آزادی کی، حقیقی آزادی کی، قانون کی حکمرانی کی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، وہ پنجاب کی دھرتی پہ لڑی جائے گی۔ اور انہوں نے زور دے کے کہا کہ ہمارے جتنے کنونشن ہوئے خیبر پختونخوا میں، اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی، اس کے باوجود کہیں پر ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ہمارے راستے روکے گئے، ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی، ہم پہ گولیاں چلائی گئی، تمام سڑکیں توڑی گئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف 26 سال سے اس کا مشن جو ہے وہ لیگل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے اور پرامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام کنونشن جو ہیں وہ پرامن رہیں گے۔ ورکرز کو انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر حکام زیادتی بھی کریں، راستے روکیں، کچھ بھی کریں، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے۔ تو لہٰذا پنجاب میں کنونشن کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں سے توقع ہے کہ خان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے اور اس وقت ملک کو جو قانون کی حکمرانی واپس لانے کی جو ضرورت ہے اور جو خان کا واحد کاز ہے اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ہم کراچی میں بھی عنقریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کے کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ 15، 16، 17 کو ہم ارنائی، پشین اور ژوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ اوورال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ اب آپ کے اگر کوئی سوال؟ صاحب آپ خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو پنجاب ہے وہاں کی جو جغرافی ہے، جو صورتحال وہ بہت مختلف ہے۔ آپ کے لیے سمجھنا تو وہاں مشکل ہوگا، پنجاب سے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، پنجاب کی لیڈرشپ تو یہی اڈیالہ مقیم ہے، تو یہ کون لیڈ کرے گا؟ خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی پنجاب کی یہاں پہ تو پاکستان کی لیڈرشپ مقیم ہے، باقی جو ہے یہی لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم نے کنونشن شروع کیے۔ اب 95% ہماری قیادت جو ہے باہر آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں 15 دن جو ہے بے شک ہم پہ پرچی بھی ہوں گے، مار کٹائی بھی ہوگی، پکڑنے کی کوششیں بھی ہوں گی، شاید پکڑ بھی لیں، لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت بھی باہر آ رہی ہے اور پنجاب بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ اور مجھے پنجاب کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پنجاب خان کو سمجھ رہا ہے، میں تو اس کا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ آپ پنجاب خود جائیں گے؟ جی میں خود جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے جو قانونی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، ان کی کارکردگی پر
खफगी का इजहार किया है। नहीं, लीगल टीम की खफगी नहीं, जुडिशल सिस्टम और मुकदमात की पेशरफ्त पे उन्होंने जो है खफगी का इजहार किया। नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में बरी कर दिया गया है। जी, इस पे हमें खान साहब ने ये कहा कि जी यही चीज़ उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि किस तरह का अदालती मयार है कि एक शख्स जो है उसको पूरी कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, उसको ऐन लाया गया उस वक़्त जब पहले मुझे नज़रबंद किया गया, फिर तमाम फील्ड बराबर की गई, तैयार की गई और ये सारी प्लानिंग थी। और ये अदालती सिस्टम जो है एक शख्स को रिलीफ दर रिलीफ दे रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई के वर्कर पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, क़यादत पे पर्चे हो रहे हैं, लोगों को जान जो है बचाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा ये अदालतें नहीं देख रही है कि पीटीआई के साथ और फिर अपने मुकदमात के हवाले से खसूसन सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमे नहीं लग रहे हैं, और जिस पे उन्होंने हमें हिदायत की कि इसके लिए पूरे ज़ोर शोर से अदालत उज़्मा से रजू करें ताकि हमारे मुकदमात लग सकें। ये बताइएगा कि खान साहब की फैमिली और शाह कुरैशी की फैमिली साहब को समाज के दौरान बंद कर दिया गया कमरे में, तो इधर से पुलिस भी पीछे आ गई। आज इस तरह हुआ कि जब प्रोसीडिंग साइफर केस के अंदर हो रही थी तो कोई 15 पुलिस वाले काली वर्दियों में, जो इनकी वर्दी है जेल वालों की, वो जज साहब के पीछे खड़े हो गए और एक इम्प्रेशन ये दिया कि हमें सबको वो प्रेशर में लाने की कोशिश की गई, जिस पर हमने भरपूर एहतजाज किया। इसके अलावा जो फैमिली है उसके लिए कंपार्टमेंट उन्होंने बनाए हैं। मीडिया को आज आपको रिपोर्ट मिली होगी कि मीडिया को शीशों के पीछे बंद कर दिया गया जहां आवाज़ नहीं पहुंचती। खान साहब ने बार बार मीडिया के नुमाइंदों से पूछा, हालांकि वो 2-4 ही थे, आप में से तमाम लोग जो हैं वो बाहर मौजूद रहे, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। तो जिसके बाद हमने बार बार जब अदालत के सामने ये सवाल उठाया और उन्होंने बजाय इसके कि मीडिया को आज़ाद करते और उन्हें एक्सेस देते कि वो आके प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते, उन्होंने फैमिली का जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया। जिसके बाद जो है वो तमाम प्रोसीडिंग रुक गई, सब ने एहतजाज किया और बड़ी देर के बाद जो है वो उनका बाहर से लॉक खोला गया। तो इस किस्म के जो टैक्टिक्स हैं वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हमें तंग किया जाए, प्रोसीडिंग्स के दौरान तंग किया जाए और किसी भी तरह से खान साहब को इन तमाम मुकदमात का प्रेशर देकर उनको अपने एजेंडा के ऊपर मनवाया जाए, जो कि नामुमकिन है। एक और बात मैं आपको आगाह कर दूं, हमारी शिकागो की तंजीम ने ऐलान किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शिकागो जा रहे थे और उसकी आमद पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस पे उन्होंने मुझसे रजू किया, खान साहब के नोटिस में लाया और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जब भी कोई इसी तरह किसी भी ऑफिसर का कोई दौरा होगा, इससे मुल्क की बदनामी होगी और ऐसे किसी किस्म के एहतजाज से परहेज़ करें। साहब, आप पंजाब में जा रहे हैं, वहाँ पर कन्वेंशन वगैरह भी करने के लिए जा रहे हैं। पंजाब में ऑलरेडी सिचुएशन आपके सामने है, सनम जवेद हो, खलीफा शाह हो, दोनों और कई और इस तरह के रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर गिरफ्तार हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस सारे तनाज़ुर को देखकर दोबारा से इस तरह की गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं? क्या आपने कोई कानूनी रायअमल इख्तियार किया इस हवाले से? जी, पंजाब में हम जा रहे हैं, हमें चूँकि वकील हूँ, मुझे तमाम चीज़ों का इल्म है कि वो क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन चूँकि उनके ख़िलाफ़ जो मेरे ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा ये केसेस बनाएंगे 144 की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉकेड की, आंसू गैस या कोई कार्य सरकार में मुदाखलत की, तो वो पर्चे जो हैं वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। कोई और भी अगर ये दफ़ा डालना चाहें बगावत का, जो अमूमन मेरे ख़िलाफ़ डाल रहे हैं, उसको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं अदालतों से भी रजू करूँगा, बैक वक्त जहाँ जहाँ भी जाऊँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर कहते हैं कि हमारी ये जो जहद पुरअमन है, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, अपना पैगाम पार्टी का जो है वो वर्कर के ज़रिए पाकिस्तानियों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस पे किसी को बड़ा फरोख्त होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस पे लेटर जारी किया हुआ है, सुपीरियर कोर्ट ने बार बार हिदायत दी हुई है, लिहाजा हमें तवक्को है कि हमारे साथ इंसानों वाला रवैया बरता जाएगा। लेकिन अगर वो जुल्म करते हैं, केपी में भी हो रहा है, तो हम जुल्म के आगे सरनगू नहीं होंगे। बातों से ये लग रहा है कि पीटीआई की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, एहतजाज था, उससे अब लोग पीछे आ रहे हैं। इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैगाम दिया गया कि वो एहतजाज ना करें।
क्या आप लोग किसी डील की जानिब भी बढ़ रहे हैं? एक जानिब ट्रायल चल रहा है। देखिए, अगर डील की बातें होती तो हम पे ये फायरिंग न होती जो उस दिन मैं गया था और बाजावड़ में पुलिस ने मुझ पे फायरिंग की, या रोड न खोदे जाते। अभी 3 जिलों के मुझ पे 7 FIR हुए हैं। कोई डील नहीं है। खान डील करने वाला आदमी ही नहीं है। डील अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। कोई इलेक्शन पे डील नहीं हो सकती है, कोई इमरान खान के हकूक पे डील नहीं हो सकती है, -1 पे कोई डील नहीं होगी। आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की हुक्मरानी के लिए अगर कोई हमें डील की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानों वाला जो रवैया है वो हमारे साथ बढ़ता जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। सिरफजल मरवत साहब, बताइएगा आज यहाँ पे बड़ी शख्सियत को शामिल करवाने जा रहे हैं, सची बताएंगे यहाँ पे कि कौन सी बड़ी शख्सियत आज? बड़ी शख्सियत भी आज डिस्कस हुई। खान साहब ने जो है बबांग दाहल कहा कि इस दफ़ा जो है हमें बड़ी शख्सियत नहीं चाहिए, हमें हमारे वर्कर्स को जो है हमने उन सीटों पे बिठाना है जो उनका हक है। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूं, मैंने ऐलान किया था, नियाजी साहब जो हैं वो मैंने ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा। इस फैसले से मैंने आज खान साहब को आगाह किया। इसके पीछे मुहर्रक ये था लेकिन खान साहब ने कहा कि ये टांग से लकी मरवत से जो है ना उन्होंने ये नहीं बताया। मैं आपको अर्ज करूं, खान साहब को मैंने ये कहा कि मैं पार्टी के कैंपेन करना चाहता हूं, पूरे मुल्क में मैं किसी हल्के पे तवज्जो नहीं दे सकूंगा, तो लिहाजा मैं, और न मैंने मिनिस्टर बनना है, न मैंने MNA बनना है, न मेरी कोई ख्वाहिश है, न मैंने कोई लीडर बनना है। और खान साहब से मैंने ये इनके मौजूद थे, मैंने कहा जी ये मैं इस पे बड़ा रिलीफ फील करूंगा कि आपका पैगाम हर जगह पहुंचाऊं, लेकिन नियाजी साहब आगाह कर देंगे। खान साहब ने कहा है वो इन्हें इलेक्शन जरूर लड़ाएंगे, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। बाकी जिस तरह से कन्वेंशन की बात की है, तफसीली कन्वेंशन भी होंगे जिस तरह से प्लान दिया गया है, मगर खान साहब क्योंकि है तंजीमी आदमी, तो तंजीमें ऑन बोर्ड लेके सिरफजल मरवत साहब जाएंगे, जगह जगह पार्टिसिपेट करेंगे और तंजीमें प्रॉपरली एंगेज करेंगे। और पंजाब भी उसी तरह करेगा जैसे KPK ने किया है। और इसकी पहली कड़ी इंशाल्लाह ताला थर्सडे को लाहौर हाई कोर्ट का फंक्शन है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और वकला इन्हें भरपूर रिसेप्शन देंगे। खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि जुमेरात के वकला जो कन्वेंशन है लाहौर में, उसमें ज़रूर शमूलियत करें। खान की हुक्म के तहत मैं उस कन्वेंशन में शिरकत करूंगा और अगले रोज़ जो है हम क्वेटा पहुंचेंगे। वहाँ क्वेटा से अरनाई तक हमारी रैली होगी, अरनाई से पशीन तक रैली होगी, फिर पशीन में कन्वेंशन होगा, इसके बाद ड्रोप तक रैली होगी। यही आपको बताना था। खड़े हो जाए, मेरी बात खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबसे बड़ा पैगाम है जो खान साहब का ये पैगाम है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मैंने जब से पार्टी बनाई, मेरी पार्टी का मंशूर भी इंसाफ था, तहरीक इंसाफ से मैंने पार्टी बनाई। 96 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से जो आइन हमें मैंडेट देता है, आइन हमें पीसफुल प्रोसेशन के मैंडेट देता है, आइन के मुताबिक हमें ये राइट है कि हम कन्वेंशन भी करें, हम लोगों को अपना मैसेज भी पहुँचाएँ। और ये वहद पार्टी है तहरीक इंसाफ जो वफाक की अलामत है, और यही पार्टी चारों सूबों को और GB और आज़ाद कश्मीर को जोड़ के रख सकती है। हमारा पैगाम, खान साहब का पैगाम ये है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं।